Hello students, welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new chapter of biology. The name of the chapter is Our Environment. In this video we are going to discuss ecosystem, the meaning, types and components, then food chain and food web, trophic levels, ecological pyramids, flow of energy, and at last we will discuss the global warming. So let's start the video. Organisms' immediate surroundings constitute its environment, which includes everything around the organism, that is both non-living and living components. जब भी हम environment की बात करते हैं, there are two components, there are two factors which comes in our mind, living and non-living. The living components are like plants, animals, microorganisms. Living means they are having life. So they are also known as biotic components. तो biotic components कौन से हुए? Bio means life. The components of the environment which have life. Okay. And abiotic components or abiotic factors. A stands for absence or without, means without life. So abiotic components are those which are without life, or we can say they are non-living components. So in our environment, in our surroundings, there are two components, biotic and abiotic. Biotic means living, abiotic means non-living. Abiotic components are physical factors. Physical factors कौन से हैं? Such as climatic factors means temperature of the environment, light, wind, humidity, precipitation, water, etc. And the edaphic factors. Edaphic means soil. Edaphic word is related to soil. So edaphic factors are those factors which are related to soil, means soil texture, soil quality, soil pH and the minerals present in the soil. So these are the abiotic components. Like in this picture you can see the wind, sunlight, soil, temperature, atmosphere, water. These are the non-living or abiotic components of the environment or ecosystem. Next is the biotic components. Bio means life, I have told you, means the biotic components include all kinds of living organisms with which the organism react. The living component, the living organisms present in the environment, or we can say that the biotic factor is the living part of the environment, like plants, bacteria, animals, fish. These are the biotic or living components of the environment. Both these abiotic and biotic components influence the organism and in turn get influenced. Biotic और abiotic दोनों कंपोनेंट एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी हमारी एनवायरनमेंट की बायोटिक और एबायोटिक बोथ कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट. एक एनवायरनमेंट के जितने दोनों कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इको मीन्स इकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक. सो इकोसिस्टम इज व्हाट? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो पार्ट जहां सब कुछ सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज इकोसिस्टम. इन एनी गिवन एरिया all living organisms like microorganisms, algae, fungi, plants, animals and human beings regularly interact with each other and with the non-living physical surroundings to maintain a balance in nature. अभी हमने बात की कि इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक. तो जितने भी ये बायोटिक और एबायोटिक मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं.
इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं. वाई? टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. All these interacting organisms in an area, जितने भी organisms हैं एक particular area के अंदर जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी वे में, whether it is directly or indirectly, they together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. तो ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं. दिस पिक्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. एक पॉन्ड इकोसिस्टम जो है दैट लुक्स लाइक दिस. द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेंसले इन 1935. यू शुड रिमेंबर हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम. दैट वाज गिवन बाय टेंसले इन 1935. Ecosystem may be defined. What is the definition of ecosystem? Listen carefully. It may be defined as structural and functional unit of biosphere. Ecosystem क्या है? Biosphere. हमारा जो atmosphere है वहाँ पर biosphere जो एक part है, bio means where the life is present. So ecosystem क्या है? Biosphere की structural और functional unit है, comprising living organisms and their non-living environment that interact by means of food chain. जो living और non-living environment है वो एक दूसरे के साथ interact करता है. कैसे? by means of food chain that we will discuss further. बाद में discuss करेंगे हम food chain के बारे में. and chemical cycles. chemical cycles or nutrient cycles you must have studied in 9th class. chemical cycles are like oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle. These are the chemical cycle and these result in energy flow. एक environment में energy का flow कैसे होता है? Biotic diversity and material cycling to form a stable self-supporting system. और ये self-supporting system क्या है? This is known as ecosystem, which is balanced, which is self-supporting. Following two basic processes occur continuously in an ecosystem. एक इकोसिस्टम के अंदर दो बेसिक प्रोसेस हैं जो कॉन्टिन्यूसली अकर होती हैं. फर्स्ट वन इज साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स. अभी बताया मैंने आपको न्यूट्रिएंट साइकिल लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ऑल दीज आर द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स. All types of ecosystem have a cyclic exchange of materials between its living and non-living components. जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका एक्सचेंज होता रहता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में. सेकेंड प्रोसेस इज फ्लो ऑफ एनर्जी. द एनर्जी फ्रॉम सन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. व्हाई इट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स? टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and is passed on to the other organism. We all know that sun is the ultimate source of energy and plants, they trap the solar energy. And what they do? By the process of photosynthesis, they convert the inorganic material into organic compound, means their food. Plants अपना food बनाते हैं कैसे? With the help of photosynthesis. और वो ही एनर्जी, वही फूड आगे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होता जाता है. इन दिस वे दे गेट द एनर्जी. सो वी कैन से दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम that is divided on the basis of nature, duration and size. On the basis of nature, it is of two types. First one is natural, second one artificial. On the basis of duration, it is of different types, temporary and permanent. And on the basis of size, it is of small size and large size. So this is the classification or types or kinds of ecosystem. हमने इकोसिस्टम को क्लासिफाई कर दिया 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर. फर्स्ट क्राइटेरिया है नेचर, सेकंड वन ड्यूरेशन एंड थर्ड वन साइज.
First we will discuss the nature. On the basis of nature, ecosystem is of two type. First one is natural, means that is controlled by nature, जहां पर ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, that is controlled by nature. These ecosystem operate in the nature by themselves without any human interference. For example, a pond, lake, forest, desert, grassland, ocean, etc. These are the example of natural ecosystem. Second one is artificial ecosystem. These are maintained by man. So they are man-made or man-engineered ecosystem. Okay, these are the artificial ecosystem because they are controlled, they are maintained by the man. For example, cropland, orchards, gardens, aquarium, etc. On the basis of duration, first one is temporary ecosystem. Temporary means which is for small time, that is not permanent. These are the short-lived ecosystem which may be natural or man-made. ये वो ecosystem है जो short-lived है, थोड़े टाइम के लिए है. नेचुरल भी हो सकते हैं और man-made भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेन-फेड पॉन्ड, ऐसा पॉन्ड, ऐसा तालाब जो बारिश से ही भरता हो, फिल होता हो, and laboratory culture of protozoan. Then permanent ecosystem, which is permanent, which is for lifelong. These are self-supporting natural ecosystem. Look at this, temporary may be natural or man-made, and permanent system is always natural ecosystem that maintains themselves for relatively long duration. For example, lake, forest and desert. Now on the basis of size, first one, small ecosystem. Small means micro, so it is also known as micro ecosystem. Micro means small, so small ecosystem is also known as micro ecosystem. Like flower pot, water in a dish, a site under a stone. आपका जो flower pot है that is very small ecosystem, बहुत छोटा है. एक डिश के अंदर आपने पानी रखा है, डिश मीन्स कोई बर्तन है आपके पास, आपने उसके अंदर वाटर रखा है, तो उसके अंदर नॉन लिविंग पार्ट भी है और लिविंग पार्ट क्या है जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो दैट इज ऑल्सो ए स्मॉल इकोसिस्टम. ओके, देन लार्ज इकोसिस्टम, वेरी लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम, दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो सिस्टम. मैक्रो मीन्स लार्ज, सो दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो इकोसिस्टम्स और मैक्रो सिस्टम्स. फॉर एग्जाम्पल, ओशियन, forest and desert. So these are the types of ecosystems. Now we will discuss the components of ecosystem. That a ecosystem has how many components? Ecosystem has basically two components. First one is abiotic, second is biotic. Biotic, bio means life, means the living component or living part of the ecosystem. Abiotic, A stand for absence or without, means without life, or we can say non-living. So we can say that ecosystem has two components, biotic and abiotic. Abiotic can be divided into inorganic substances, organic compounds and क्लाइमेटिक फैक्टर्स. एबायोटिक के अंदर तीन कैटेगरीज आ जाएंगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर सिंपल, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लास्ट वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, हीट एटसेट्रा. बायोटिक कंपोनेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, सेकंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन decomposers. Now we will discuss them one by one. First one is abiotic component. एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमारा आता है, इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट के अंदर तीन फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. तो जितने भी फिजियोकेमिकल यानी कि फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर वो किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. और जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर आते हैं दैट कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. So the abiotic component, it includes the physiochemical factors. These components not only affect the distribution and structure of organisms
but also their behavior and interrelationship. ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को ही अफेक्ट नहीं करता, इट अफेक्ट्स देयर इंटर रिलेशनशिप, कि आपस में वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था, लाइक वाटर, ह्यूमिडिटी वी कैन से, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सोइल का टेक्सचर कैसा है, सोइल की पीएच कैसी है, सनलाइट, विंड. सो ऑल दीज कम अंडर द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट वन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus, etc. and their compounds like water. वाटर में क्या आता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड में हम बात करेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो जितने भी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और उसके अलावा उनके जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे. सेकेंड वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, these come under the organic compound. These are present in the living organisms and dead organic matter. लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है और जो उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है. थर्ड वन, क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल एटसेट्रा. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द इडेफिक फैक्टर्स. इडेफिक फैक्टर्स मीन्स factors related to soil. So these are the abiotic component of the ecosystem. Next one is biotic or living component. The living organisms present in an ecosystem form the biotic component. किसी भी ecosystem में जो living organism present है, like plants, animals, microorganism, तो जो living part है ecosystem का, that form the biotic component. Regarding the mode of obtaining food, the organisms occurring in an ecosystem are classified into three main categories on the basis of their mode of nutrition. किस तरह से वो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमने लिविंग कंपोनेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स विच प्रोड्यूसेस, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, खुद से बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स. सेकेंड, कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं, मीन्स who are dependent on the producers. Then third, decomposers, जो इन दोनों को decompose करते हैं, degrade करते हैं. So these come under the biotic component of the ecosystem. First one, producer like green plants. These include all green plants, blue-green algae, some bacteria and free-floating phytoplankton. All these are the producers. Why they are producer? Because they produce, they synthesize their food. वो अपना फूड खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis. They possess photosynthetic pigment. कौन सा photosynthetic pigment प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है. दैट इज द photosynthetic pigment and that is green in color. That's why the leaves are green in color. तो ये जो क्लोरोफिल होता है that is the photosynthetic pigment जो इन ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूसर्स में प्रेजेंट होता है. एंड दे फॉर्म द ग्लूकोज, फूड बनाते हैं by the process of photosynthesis. They utilize solar energy. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है, ड्यूरिंग डे टाइम. और डे टाइम में क्या है, सनलाइट. तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, दे यूटिलाइज द सोलर एनर्जी. और सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस से क्या बना, ग्लूकोज बना ना. और ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों प्रेजेंट है, केमिकल है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर, क्योंकि वो एनर्जी की फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं. सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स और ट्रांसड्यूसर्स. नेक्स्ट वन, कंज्यूमर्स. These include animals. They are unable to synthesize their own food. Animals जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते, so they are dependent on the producers. They consume the food prepared by producers. They are also called heterotrophs.
जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, सो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। दे आर फर्स्ट वन हर्बीवोर्स। कंज्यूमर्स की अगर हम टाइप्स डिस्कस करें, कैटेगरीज डिस्कस करें, तो फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। हर्ब्स मीन्स प्लांट्स, दोज एनिमल्स विच ईट द प्लांट्स, जो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, दे ईट द ग्रास और प्लांट्स, दोज आर द हर्बीवोर्स लाइक डियर। सेकेंड कार्निवोर्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ईट करते हैं, मांस खाते हैं, दे आर द कार्निवोर्स। थर्ड वन ओमनिवोर्स, ओमनी मीन्स बोथ, जो हर्बीवोर्स भी हैं कार्निवोर्स भी हैं, जो ग्रास भी खाते हैं फ्लैश भी खाते हैं, लाइक बियर। ठीक है, सो कंज्यूमर को अगर हम डिवाइड करते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। अब चाहे हर्बीवोर है, चाहे कार्निवोर है, चाहे ओमनिवोर है, तीनों के तीनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्रोड्यूसर पर। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन देयर फॉर देयर फूड ऑन द प्रोड्यूसर। Herbivore, the animals which feed on plants, they are also called primary consumer और first order consumer, इनको हम primary consumer भी कहते हैं। Example, rabbit, deer, goat, sheep, seed eating plants, these all are the herbivores. Next, carnivore. Carnivores, the animals that prey upon herbivores, जो herbivore पर अटैक करते हैं और उनका फ्लैश, उनका मांस ईट करते हैं। Carnivores that eat herbivore are called प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, या इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉक्स, स्नेक, फ्रॉग। एनिमल्स विच ईट प्राइमरी कार्निवोर आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर। अब जो प्राइमरी कार्निवोर को खाएगा, दे आर द सेकेंडरी कार्निवोर, या हम उसको क्या कहेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, ओमनिवोर्स। Animals that eat both plants as well as animals are called omnivores. For example, dogs, human beings, bears. Some animals, mostly birds, they feed on flesh of dead animals. They are called scavengers. कुछ animals, especially अगर हम birds की बात करें, कुछ birds ऐसे हैं जो दूसरे animals का, जो dead animals हैं, उनका flesh खाते हैं, उन पर feed करते हैं। उन बर्ड्स को या उन एनिमल्स को हम कहते हैं स्क्वेंजर्स, लाइक ईगल, वल्चर्स जितने भी हमारे आते हैं, क्रोज एंड हाइनेस, दीज आर द स्क्वेंजर्स, जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को, मांस को खाते हैं। ईगल आप सभी ने देखा होगा। नाउ इफ वी डिस्कस द कंज्यूमर्स, यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट वन, प्राइमरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे? जो हर्बीवोर्स हैं, विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर, तो वो कौन से हैं? डियर और गोट। आफ्टर दैट, सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें और प्राइमरी कार्निवोर की बात करें, दैट इज स्नेक, फ्रॉग और फॉक्स। अब प्राइमरी कार्निवोर के ऊपर कौन अटैक करेगा? यस, सेकेंडरी कार्निवोर। और अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर की टर्म में लें तो कौन अटैक करेगा? टर्शरी कंज्यूमर, लाइक आउल, लॉयन, टाइगर। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, सेकेंडरी कार्निवोर था, तो सेकेंडरी कार्निवोर पर कौन अटैक करेगा? लास्ट ऑर्डर कार्निवोर, या हम इसको टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, लाइक शार्क, ईगल, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स। Decomposers which decompose, degrade. Microorganisms, mostly bacteria and fungi, they break down complex organic compounds from the bodies of dead animals, decaying remains of plants and fecal matter of animals into simple inorganic substances. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली अगर हम बैक्टीरिया और फंजाई की बात करें, तो वो क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन, वो जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक डेड एनिमल या डेड प्लांट की बॉडी के अंदर, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। किस में? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, तो कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल सब्सटेंस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट के किस में कन्वर्ट होंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका जब ब्रेक डाउन होगा तो वो किस में टूटेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दे आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
ओके, सो डिकम्पोजर क्या करते हैं? दे डिग्रेड, दे ब्रेक डाउन, दे डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स into the simple inorganic substances. So this was all about the decomposers. These are also known as the cleaning agents of the environment. Decomposer को हम cleaning agents भी कहते हैं. Why? क्योंकि जो dead matter है, जो dead plants है, dead animals है, वो उनको environment से खत्म करते हैं, clean कर देते हैं. So they are the cleaning agents. Next is the food chain. अभी हमने बात की plants, they are the producer. Herbivores, they attack on the plant. Carnivores, they attack on the herbivores. So सभी क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. प्लांट पर डिपेंड है हर्बीवोर, हर्बीवोर पर डिपेंड है कार्निवोर, कार्निवोर पर डिपेंड है टॉप कार्निवोर. तो ये एक चेन है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ दे आर interconnected. This chain is known as food chain. Food chain is the feeding interaction between organisms of different populations in an ecosystem. Food chain क्या है? ये एक feeding interaction है. किसमें? Different organisms के बीच में. It describes the sequence of energy from one population to the next. एक population से next population तक जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसके सीक्वेंस को शो करता है फूड चेन. लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जांपल मेज, मक्का, दिस इज द प्रोड्यूसर. ओके, इस पर कौन डिपेंडेंट है? लोकस्ट विच इज प्राइमरी कंज्यूमर. इस पर कौन डिपेंड है? लीजर्ड विच इज सेकेंडरी कंज्यूमर. इस पर कौन डिपेंड है? स्नेक विच इज टर्शरी कंज्यूमर. सो एक चेन की फॉर्म में दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरएक्टेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट. अगर इस चेन में से हम एक पार्ट भी हटाते हैं तो पूरी की पूरी चेन इम्बैलेंस हो जाती है. सो इट इज ए सीक्वेंस. द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग, ये जो सीक्वेंस बना हुआ है इंटरलिंकिंग का ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन. हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट भी करेगा और खुद भी किसी न किसी के द्वारा खाया जाएगा. ठीक है, तो ये जो रिपीटेड ईटिंग है और बीइंग ईटन है, इसकी जो एक सीरीज बनी हुई है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर, इन ए सीक्वेंस. दिस चेन इज नोन एज फूड चेन. लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल ग्रास. ग्रास पर कौन डिपेंडेंट है? ग्रास होपर. अब ग्रास होपर ने किसको ईट किया? ग्रास को. और ग्रास होपर को कौन ईट कर रहा है? फ्रॉग. ठीक है, तो ग्रास होपर ने ईटिंग भी की एंड इट इज ऑल्सो बीइंग ईटन बाय द फ्रॉग. ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म दोनों चीजों में इन्वॉल्व है. फ्रॉग इज डिपेंडेंट ऑन ग्रास होपर एंड फ्रॉग इज ईटन बाय द पाइथन. स्नेक, वी कैन से द स्नेक इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रॉग and it is also being eaten by the eagle. So all the organisms are linked in a series. They are forming a chain and this chain of food energy transfer हो रही है ना, food energy transfer हो रही है. So this transfer of energy, this transfer of food energy in a chain is known as food chain. Now characteristics of food chain. First one, न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन. अभी हमने बात की कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट, दे आर इंटरएक्टेड, इंटरकनेक्टेड. ठीक है, किस लिए? फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड. सो फूड चेन इज ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन. इट इज ऑलवेज स्ट्रेट. प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, कंज्यूमर तक जाएगी, हमेशा स्ट्रेट चलेगी. ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आ रहे हैं, कंज्यूमर के बाद प्रोड्यूसर आ रहे हैं. स्ट्रेट लाइन में चलेगा. प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन डिकम्पोजर. इस तरह से चलेगा. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा. ऐसा नहीं होगा कि प्लांट्स देन एनिमल्स देन डिकम्पोजर्स, ऐसा रहेगा हमेशा. ऐसा नहीं होगा प्लांट्स देन हर्बीवोर देन अगेन प्लांट्स देन कार्निवोर then herbivore then decomposer. Not like this.
it will be unidirectional flow of energy. एक डायरेक्शन में चलेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स. 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स. मैक्सिमम फूड चेन में 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं. लॉस ऑफ एनर्जी, हर लेवल पर एनर्जी लॉस होता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ food chain. We can classify the food chain on the basis of habitat. Like first one, terrestrial food chain. Terrestrial means land. That food chain which is present in the land, which is present on land. Second one, aquatic food chain. Food chain occurring in the water bodies. So on the basis of habitat, food chain is of two types: terrestrial food chain, then aquatic food chain. Now on the basis of ट्रॉफिक लेवल्स. ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? जो ये लेवल्स हैं, प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर. सो दीज आर द लेवल्स और ट्रॉफिक लेवल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड लास्ट वन 5 स्टेप. नाउ फर्स्ट सी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, terrestrial food chain. It occurs in terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem like grassland, forest, desert. These are the terrestrial ecosystem. ठीक है? Like grass, it is being eaten by the grasshopper. Grasshopper is eaten by frog. Frog is eaten by python. Python is eaten by the eagle. This is the terrestrial food chain. Aquatic food chain. It occurs in ponds, lakes, pools, rivers, and ocean. In all the water bodies. Like seaweed, okay, plants, your phytoplankton we can say. After that small fish, then large fish, then shark, or we can say phytoplankton, then zooplankton, then small fish and large fish. So this is in the aquatic bodies or water bodies. So this is the example of aquatic food chain. So on the basis of habitat, food chain is of two types: terrestrial food chain and aquatic food chain. Terrestrial food chain which occur on land. Aquatic food chain which occur in water bodies. Now we will classify the food chain on the basis of trophic levels. First one, 2-step food chain. For example, vegetation, or we can say plants, and it is fed by the elephant. Second one, 3-step food chain. Here 3 steps are involved, or there are 3 trophic levels. First one, grass, then deer, then lion. 3 स्टेप है, 3 ट्रॉफिक लेवल है. सो दिस इज 3 स्टेप फूड चेन. देन 4 स्टेप फूड चेन, ग्रास, देन इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, एंड लास्ट वन 5 स्टेप फूड चेन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास, देन इंसेक्ट, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन पीकॉक. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, कितने ट्रॉफिक लेवल हैं किसी भी फूड चेन में, कितने स्टेप्स हैं, उस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है फूड चेन को इनटू 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रॉफिक लेवल्स. Repeatedly we are saying the trophic levels in the food chain, the steps in the food chain. So what are these trophic levels? बार बार हम बोल रहे हैं कि फूड चेन में 2 ट्रॉफिक लेवल हैं, 3 ट्रॉफिक लेवल है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये आता है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये आता है. तो ट्रॉफिक लेवल्स हैं क्या? The distinct sequential steps in food chain. हर फूड चेन के अंदर जो सीक्वेंस में अरेंज स्टेप्स हैं, these steps are the trophic levels. If there are 2 steps, means there are 2 trophic levels. If there are 3 steps in a food chain, means there are 3 trophic levels. If there are 4 steps, means there are 4 trophic levels. So where transfer of energy occurs are referred to as different trophic levels. The different trophic levels में क्या होता है? फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है from one level to another level. Like this, you can see in this diagram. First trophic level is grass, or we can say producers, plants, green plants. Okay, this is the T1, first trophic level. Grass के बाद second step क्या आएगा? T2, which is insect, or we can say primary consumer. Then T3, third trophic level, frog, or secondary consumer. And last T4, snake, that is tertiary consumer.
तो हमने फूड चेन के जो स्टेप्स हैं उनको लेवल्स में अरेंज किया है, एंड दीज लेवल्स आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट लेवल इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, T2 second trophic level, T3 third trophic level, T4 fourth trophic level. Next is food web. Food chain. जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स थे, जितने भी लेवल्स थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, दे आर इंटरलिंक्ड इन ए चेन, स्ट्रेट. फूड वेब. वेब मीन्स जाल, where there is no straight chain. All the food chains are assembled. They are interconnected. हमारा जो environment है, environment के अंदर no food chain exists independently. कोई भी food chain independently exist नहीं करती. Every organism is dependent on each other. हर organism किसी न किसी पर dependent है. ऐसा नहीं है कि एक person एक ही food को खा रहा है या एक animal एक ही animal को खा रहा है. उसके पास alternative sources of food है. So on the basis of alternative sources of food, food chains are never occurred independently. कभी भी वो environment में independently occur नहीं करती हैं. It occur in the form of food web. Various food chains in an ecosystem do not operate in isolation. कोई भी food chain ecosystem के अंदर, environment के अंदर, किसी भी ecosystem के अंदर isolation में independently exist नहीं करती है. They operate in the form of a network of food chain. जितनी भी food chains हैं वो आपस में एक network बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं, and that network is known as food web. The network of several interconnected food chains is called a food web. इस network को हम क्या कहते हैं? Food web. Food web is a network of food chains which become interconnected at various trophic levels, so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. Food web actual में है क्या? Food chains का network. और कैसा network है? Network किस तरह से बनता है? क्योंकि different trophic levels पर food chains आकर आपस में interconnect होती हैं. Like you can see in this picture. इस picture में देखो, जो यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? रैट. ठीक है. इधर ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है? लॉयन. ठीक है. और इधर हम देखें तो ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है? स्पैरो. स्पैरो के बाद अदर एनिमल, देन लास्ट में ईगल. इधर आप देखो, रैट को आगे कैट ने खाया, कैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को फिर लॉयन ने खा लिया. ठीक है. तो इस तरह से किसी ना किसी ट्रॉफिक लेवल पर आकर फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं. ठीक है. यहाँ पर देखो, प्लांट को किसने खाया है? डियर को. ग्रास को भी डियर ने खा लिया. तो डियर जो है दो चेन में इन्वॉल्व हो गया. ठीक है ना. तो इस तरह से जो डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं वो किसी ना किसी ट्रॉफिक लेवल पर आकर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं. इस इंटरकनेक्शन की वजह से वो एक फूड वेब बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं फूड का, विच इज नोन एज फूड वेब. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब. नेवर स्ट्रेट. एक फूड वेब जो है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती. अभी आपने देखा, दैट इज जस्ट लाइक ए नेटवर्क. अल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फूड वेब. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फूड वेब का. अगर फूड वेब की फॉर्म में फूड चेन्स एग्जिस्ट ना करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं. सपोज एक ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपने फूड के लिए. लाइक अगर लॉयन सिर्फ डियर पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए, तो अगर डियर खत्म हो जाएंगे देन लॉयन विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट. लॉयन भी खत्म हो जाएंगे. पर ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लॉयन सिर्फ डियर का फ्लैश नहीं खा रहा, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी एनिमल्स हैं जिनका फ्लैश ईट करता है. सो द फूड वेब प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी. कि अगर एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे को खा लेगा और उसकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी. स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. फूड वेब मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. देन इकोसिस्टम डेवलपमेंट. Now we will discuss the ecological pyramids. Idea of ecological pyramid was developed by Charles Elton, who introduced this concept
Charles Elton in 1927. An ecological pyramid may be defined as graphic representation of an ecological parameter. जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो क्या करता है, हमारे इकोलॉजिकल पैरामीटर को, किसी भी एक पैरामीटर को शो करता है, उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो करता है. लाइक यू कैन सी हियर, हमने जब ट्रॉफिक लेवल्स की बात की थी, यहाँ देखो पिक्चर में, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, देन प्राइमरी कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर. तो इसको हमने पिरामिड फॉर्म में शो किया हुआ है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हमने शो की हुई है. फूड चेन की फॉर्म में ना शो करके हमने क्या किया, इसको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो की है. किसी भी एक इकोलॉजिकल पैरामीटर को हम ले सकते हैं. इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या है, लाइक नंबर, क्वांटिटी अगर हम लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम इकोलॉजिकल पैरामीटर बना सकते हैं. बायोमास के बेसिस पर हम बना सकते हैं, एनर्जी के बेसिस पर हम बना सकते हैं. दीज आर द इकोलॉजिकल पैरामीटर. तो हमने इसको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे दी है किसी भी इकोलॉजिकल पैरामीटर के लिए. दिस इज द इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पैरामीटर कौन से, अभी मैंने आपको बताया, नंबर और बायोमास और अमाउंट ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन इन इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन एग्जिस्ट कर रही है उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को हम शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर. दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड. Now ecological pyramids are of three types. First one is pyramid of numbers. Number of individuals, number of organisms. उसके बेसिस पर जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं of different trophic levels in a food chain, that is the pyramid of number. The shape of pyramid of numbers may be upright, for example in pond ecosystem and in grassland ecosystem, or inverted, for example in पैरासिटिक फूड चेन. अब जो पिरामिड ऑफ नंबर है इसमें क्या है, हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लेते हैं. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या आता है हमारा, प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स के नंबर कितनी है. उसके बाद हमारा आता है हर्बीवोर, हर्बीवोर के नंबर कितनी है. देन कार्निवोर, कार्निवोर का नंबर हम काउंट करेंगे. देन टॉप कार्निवोर, उसका नंबर हम काउंट करेंगे. और उस बेसिस पर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे. दैट इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर्स. You can see in this picture. First, see here. First हमने एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया है of the pond ecosystem. Pond ecosystem की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन. ठीक है, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स पर कौन अटैक करता है, जूप्लैंक्टन. उनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कम शो किया है, इसीलिए मैंने इसके जो रेक्टेंगल है उसको हमने छोटा शो किया है. ठीक है, जू प्लैंक्टन पर कौन अटैक करेगा, स्मॉल फिश, उसका नंबर भी कम होगा. स्मॉल फिश पर कौन अटैक करेगा, लार्ज फिश, तो उसका नंबर भी कम होगा. तो ये जो हमारा अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड होगा उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर का नंबर दैट विल बी मोर एंड द टॉप कार्निवोर और द टॉप कंज्यूमर विल बी लेस इन द नंबर. सो एज वी गो अपवर्ड द नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग. This is the upright ecological pyramid. For example, in the pond ecosystem. Now, if we look at the inverted ecosystem, इसका totally opposite, उल्टा. सबसे नीचे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा block, then bigger. For example, in parasitic food chain, you can see here. सबसे नीचे oak tree, which is the producer, बहुत कम है नंबर. Birds, which attack on the oak trees, नंबर इंक्रीज हो रहा है. लाइस एंड बग्स, दे आर द पैरासाइट्स ऑन द बर्ड्स, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. एंड टॉप मोस्ट में बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिटीज, इसका नंबर सबसे ज्यादा है. सो दिस इज द इन्वर्टेड, उल्टा है ये. ठीक है, तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वहां पर हमारा अपराइट होगा और जो पैरासिटिक फूड चेन है वहां पर हमारा इन्वर्टेड होगा. सो वी कैन से दैट पिरामिड ऑफ नंबर मे बी अपराइट और इन्वर्टेड. किसी का भी नंबर ज्यादा हो सकता है, प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, कंज्यूमर का भी हो सकता है. सो दिस इज द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर. नेक्स्ट पिरामिड इज पिरामिड ऑफ बायोमास. ए पिरामिड ऑफ बायोमास इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास. बायोमास मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम.
किसी भी इकोसिस्टम में एक फिक्स टाइम पर जो लिविंग मैटर है और जो डेड मैटर है उसको अगर हम ऐड करते हैं, दैट इज द बायोमास। द पिरामिड में ऑल्सो बी अपराइट और इन्वर्टेड। जो बायोमास का पिरामिड है दैट में बी अपराइट, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एंड इन्वर्टेड फॉर एग्जाम्पल इन pond ecosystem. Let's see the pyramid of biomass. If we see in the case of upright, then first grass का biomass सबसे ज़्यादा है, then rabbit, rats and mice, it goes on decreasing, snakes, then birds. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हैं या डिकम्पोजर की तरफ जाते हैं, तो जो बायोमास है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड इन केस ऑफ अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, इट इज इन्वर्टेड। फाइटोप्लैंक्टन दैट इज लेस इन नंबर, देन जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. So this is the inverted pyramid of biomass. Next is pyramid of energy. Very important. A pyramid of energy is a graphic representation of amount of energy per unit area at different trophic levels of a food chain in an ecosystem. किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर यूनिट एरिया, तो वो हर ट्रॉफिक लेवल पर कैसी है, इट इज शोन बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी. द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज द एनर्जी इज हाईएस्ट एट प्रोड्यूसर लेवल. जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल कौन है, ग्रीन प्लांट्स, वहां पर मैक्सिमम है क्योंकि वो फूड बना रहे हैं, फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी मैक्सिमम है. जैसे जैसे हम अपर लेवल की तरफ जाते हैं, हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर की तरफ जाते हैं, तो वहां पर एनर्जी जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर. So this is the pyramid of energy which is always upright. Now we will see that how energy flows in an ecosystem. एक इकोसिस्टम के अंदर जब हम फूड चेन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, किस तरह से ट्रांसफर करती है. इन एन इकोसिस्टम फूड चेन रिप्रेजेंट ए स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटेन इन द फूड. फूड चेन के अंदर हमने बात किया था कि वन वे प्रोसेस है. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का क्या है, वन वे प्रोसेस है, और यहाँ हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है. प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और कंज्यूमर तक एनर्जी चलेगी स्टेप बाय स्टेप. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एंटायर एनर्जी इज सन. हमारी अर्थ पर या किसी भी प्लेनेट पर जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का दैट इज सन, एंड दैट सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. Of the total solar radiations falling on the earth, only about 1% is captured by green plants. अर्थ के ऊपर जितनी भी सोलर रेडिएशंस आती हैं उसका सिर्फ 1% ही ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं, और उस एनर्जी को कैप्चर करके, उन सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करके वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये जो फूड एनर्जी हो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. So we can say that by the process of photosynthesis, the solar energy is converted into the chemical energy. When green plants are eaten by the herbivores, green plants पर कौन अटैक करता है, herbivore. A great deal of energy is lost as heat to the environment. तो कुछ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है that is lost to the environment in the form of heat energy. अब some amount of energy is used for the metabolic activities of plants. प्लांट्स ने फूड बनाया, केमिकल एनर्जी बनाई, ठीक है, कुछ तो लॉस हो गई एनवायरनमेंट में, कुछ प्लांट्स ने यूज कर ली अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, लाइक रेस्पिरेशन एंड ऑल दीज. 10% ऑफ एनर्जी इज टर्न्ड इनटू बॉडी ऑफ हर्बीवोर. तो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर तक, प्रोड्यूसर के पास तो हो गया 100%, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर तक सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है. इट कंटिन्यू टू ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स. हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% ही ट्रांसफर होती है, बाकी कुछ यूटिलाइज हो जाती है और कुछ लॉस हो जाती है. नाउ सी हियर द एनर्जी फ्लो डायग्राम. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर क्या करते हैं,
प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, दे यूज द सोलर रेडिएशन. फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजिंग 2000 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन. उन्होंने 2000 यूनिट्स दे आर गेटिंग द 2000 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन. ठीक है, प्लांट्स तक कितनी आई 2000. प्लांट्स ने कितनी लेनी है, सिर्फ 1% ट्रैप करनी है. तो 2000 का 1% क्या होगा, दैट विल बी 20 यूनिट्स. तो प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी आई 2000 में से 20 यूनिट्स. अब इन 20 यूनिट्स में से कुछ तो यूटिलाइज होगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए और कुछ दैट विल बी लॉस टू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. अब ये जो 20 यूनिट्स हैं प्रोड्यूसर्स के बाद जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, हर्बीवोर्स की जब हम बात करेंगे, जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, ओनली 10% विल बी ट्रांसफर. तो 20 यूनिट से वहां पर कितने पहुंचेंगे, सिर्फ 2 यूनिट्स. ओके, अब हम हर्बीवोर से बात करें कि हर्बीवोर्स पर जब अटैक करेंगे कार्निवोर, ठीक है, तो उस तक कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 0.2%. ठीक है, तो वी कैन से दैट 10% एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. हमने 2000 यूनिट का एग्जाम्पल लिया है कि 2000 यूनिट सोलर रेडिएशन आ रही हैं, तो प्रोड्यूसर के पास कितनी आई, ओनली 1%, दैट इज 20 यूनिट्स. और हर लेवल पर कितनी ट्रांसफर हो रही है, 10% ट्रांसफर हो रही है. बाकी जो है कुछ यूटिलाइज हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एंड सम इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट. Okay, so this is the energy flow diagram, that how energy flows, how energy get transferred from one trophic level to another level. From this diagram we can examine unidirectional flow of energy. There is unidirectional flow of energy from sun to producer and then from producer to various level of consumer. एक ही डायरेक्शन में चलेगा. ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में गया और कार्निवोर से भी हर्बीवोर में आएगा, ऐसा नहीं होगा. दिस इज यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में होगा. द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सन. प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी कैप्चर की है वो सन के पास वापस नहीं जाएगी. हर्बीवोर के पास जो एनर्जी आई है वो प्रोड्यूसर के पास वापस नहीं जाएगी. कार्निवोर के पास जो एनर्जी आई है वो हर्बीवोर के पास वापस नहीं जाएगी. ठीक है, तो सन से एनर्जी कहाँ जाएगी, प्रोड्यूसर के पास. प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाएगी, herbivore, herbivore to carnivore. In this way the energy flows in single direction, in one direction. Next is biological magnification, very important topic. What do we mean by biological magnification? Bio means living, okay, life. Magnification, magnify means enlarge, increase. Some harmful non-biodegradable chemicals, we all know that chemicals or substances are of two types. Some are biodegradable, जो degrade हो जाते हैं, some are non-biodegradable. So the harmful non-biodegradable chemicals, they enter the bodies of organism through the food chain. देखो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई हर्बीवोर में. हर्बीवोर पर अटैक किया कार्निवोर ने, तो हर्बीवोर ने जो भी खाया उसकी बॉडी में जो भी है दैट विल गोज टू द कार्निवोर. कार्निवोर पर जब अटैक करेंगे टॉप कार्निवोर, तो कार्निवोर के अंदर जो भी होगा दैट विल एंटर टू द बॉडी ऑफ टॉप कार्निवोर. सो इन दिस वे द हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स दे एंटर द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड चेन. हर लेवल पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं वो एंटर करते जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर एंड गो ऑन कंसंट्रेटिंग एट ईच ट्रॉफिक लेवल. और हर लेवल पर उसकी अमाउंट जो है इंक्रीज होती जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम. हियर द फ्लाइज, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, उस पर अटैक किया फिश ने, स्मॉल फिश ने. ठीक है, तो जो उन इंसेक्ट्स के अंदर, उन फ्लाइज के अंदर जो केमिकल्स थे, जो हार्मफुल वेस्ट था, वो स्मॉल फिश में एंटर कर जाएगा. अब स्मॉल फिश को बास फिश ने अटैक किया, लार्ज फिश वी कैन से, तो जो उस स्मॉल फिश के अंदर केमिकल थे वो भी आएंगे लार्ज फिश में, और लार्ज फिश के अंदर जो केमिकल्स आ रहे हैं वो तो हैं ही. तो अमाउंट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अब इस फिश को जब ह्यूमन ईट करेगा तो ह्यूमन के अंदर क्या है, फ्लाइज वाले केमिकल भी जाएंगे, स्मॉल फिश वाले केमिकल्स भी जाएंगे, लार्ज फिश वाले केमिकल्स भी जाएंगे.
So the amount is increasing. This is known as magnification. Magnification of what? Non-biodegradable chemicals. This phenomena is called biomagnification or biological magnification. The process that involves progressive increase in concentration of harmful non-biodegradable chemicals at different trophic levels in a food chain is called biomagnification. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज होता जा रहा है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा है, हर लेवल पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन. नेक्स्ट इज 10% लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने बात किया था फ्लो ऑफ एनर्जी की या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात जब हमने की थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. सो दैट लॉ इज 10% लॉ. This law was put forth by Lindemann. Who proposed this law? Lindemann in 1942. During transfer of energy from one trophic level to the next trophic level. We can see here, let's take the example. Producer की अगर हम बात करें तो producer से primary consumer तक जब food energy जाती है, then primary consumer से secondary में जाती है, secondary से tertiary में जाती है, then only 10% of energy is available to the next higher level. बाकी जो remaining 90% है वो कुछ environment में loss हो जाएगी in the form of heat and respiration और बाकी जो है वो use हो जाएगी body की metabolic activities के लिए. So this is the 10% rule. So the 10% of energy is transferred from one trophic level to the next trophic level. This is said by the Lindemann, which is known as 10% law. Thus, according to this law, transfer of energy from one trophic level to another is never 100%. Very important. कभी भी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा that is never 100%. ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी उनके पास है वो उतनी की उतनी हर्बीवोर के पास जाएगी, हर्बीवोर की एनर्जी पूरी की पूरी कार्निवोर के पास जाएगी. अगर ऐसा होगा तो पिछला ट्रॉफिक लेवल खत्म होता चला जाएगा. ठीक है, तो कुछ वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करते हैं, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और बाकी जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाती है ओनली 10%. नेक्स्ट, हाउ इज अर्थ केप्ट वार्म. हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, हाउ इट इज केप्ट वार्म, किस तरह से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है. Our earth is surrounded by atmosphere which keeps it warm and acts like glass walls of a greenhouse. हमारी जो अर्थ है आप सभी को पता है that is surrounded by a layer which is known as atmosphere. और उस एटमोस्फेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है. ये जो एटमोस्फेयर है दिस एक्ट्स लाइक द ग्लास वॉल ऑफ ए ग्रीन हाउस. दिस इज जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट. जैसे ब्लैंकेट को हम विंटर में यूज करते हैं फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे ही एटमॉस्फेयर भी हमारी अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है. इट इज जस्ट लाइक द ग्लास वॉल ऑफ द ग्रीन हाउस. क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड वेपर्स present in atmosphere filter and scatter large quantity of solar radiation falling on the earth. जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को फिल्टर करते हैं और उसको स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं. ओनली 48% ऑफ टोटल रेडिएशन कितनी आ रही है, 100%, उसमें से 48% कहाँ तक आ रही है, हमारी अर्थ तक आ रही है. बाकी कितनी बची, 52. तो अर्थ तक कितनी आ रही है, ओनली 48%. एंड ओनली 1% ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. अभी डिस्कस किया था हमने कि प्लांट्स जितनी सोलर रेडिएशन आ रही है उसका सिर्फ 1% यूज करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग रेडिएशन इज यूज इन वार्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. 1% प्लांट ने यूज करी और वही आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर चलती जाएगी. प्रोड्यूसर के पास जो आएगा उसी का ही अमाउंट आगे हर्बीवोर कार्निवोर तक जाएगा. अब 48 में से 1% तो प्लांट्स ने यूज कर ली, बाकी जो बची है 47 दैट इज यूज्ड इन वार्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो अर्थ को गर्म रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
solar radiations absorbed by the earth's surface is emitted back as infrared radiations into the atmosphere. अर्थ का जो सरफेस है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उनको एब्जॉर्ब करके वो बाद में एमिट बैक करता है, वापस उनको एमिट करता है एज infrared radiations into the atmosphere, and this infrared radiation is responsible for warming the earth, for maintaining the temperature of earth. Most of infrared radiations are absorbed by greenhouse gases. ये जो infrared radiation, very important, listen carefully, these infrared radiation, इनको absorb कौन करता है? absorb होंगी तभी तो emit back होंगी, अर्थ absorb करेगी तभी तो अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इनको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस, GHG, and they are re-emitted in all direction. It is called greenhouse flux. Now what are these greenhouse gases? The gases in the atmosphere most responsible for keeping the earth's surface warm are carbon dioxide, methane, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं, अर्थ के सरफेस को वार्म रखती हैं। दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी हमने बात की कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मथ ऑफ द अर्थ। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अर्थ का टेम्परेचर गर्मी के, अर्थ की गर्मी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब स्टैंड्स फॉर अर्थ, वार्म मीन्स गर्मी, पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, वार्मिंग होना, that is known as global warming. The phenomena of rise of average atmosphere temperature due to continuous increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere is called global warming. मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की अमाउंट भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, उनकी अमाउंट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो द सनलाइट, जो अर्थ के पास जो सनलाइट आती है, जो सोलर रेडिएशंस आती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जो एब्जॉर्ब होती हैं दे आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड दोज आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट विल आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. So students, this was all about the chapter our environment. In this video we discussed about the ecosystem, the components of ecosystem, types of ecosystem, food chain and food web, then 10% law, energy transfer or energy flow, ecological pyramids, and last we discussed about the global warming. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.